السلام علیکم ناظرین، روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ ایک دن ایک آدمی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، اور سلام کرو اگرچہ کہ تم پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے، الغرض سب کو سلام کرو۔ خبروں سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں کی جانب۔ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے بی فارم کی اجرائی مختلف جماعتوں سے قائدین کی اچانک پارٹی میں شمولیت۔ بی فارم کی اجرائی کئی نشستوں پر اندرونی کشمکش جاری۔ ضلع نظام آباد کے مختلف بلدیات میں آج آخری دن امیدواروں کی کثیر تعداد نے پرچہ نامزدگی کی داخل۔ مختلف مقامات پر انتخابی سرگرمیوں میں نمایاں تیزی دیکھی گئی۔ تلنگانہ میں انجینئرنگ، ایگریکلچر، فارمیسی کالجوں میں داخلوں کے لیے انعقاد عمل میں لائے جانے والے TGEA-PCET 2026 شیڈول کو حتمی شکل دی گئی۔ 14 فروری سے آن لائن درخواستیں قبول کی جائے گی۔ ضلع کامریڈی کے مراکز پر واقع میونسپلٹی دفتر میں قائم کیے گئے پرچہ نامزدگی مراکز کا کلکٹر الا ترپاٹھی نے لیا جائزہ۔ میں بی جے پی کارپوریٹر امیدواروں نے نامینیشن مراکز پر پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ مختلف مقامات پر MP اروند اربن، MLA دھنپال سوریہ نارائن گپتا کے علاوہ بی جے پی قائدین ہمراہ موجود۔ BJP مہاتما گاندھی کے نام کو تبدیل کرنے کے لیے کر رہی ہے سازش۔ DCC بھون میں مہاتما گاندھی کی تصویر پر DCC صدر نگیش ریڈی نے پیش کی گل عقیدت۔ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے بی فارم کی اجرائی مختلف جماعتوں سے قائدین کی اچانک پارٹی میں شمولیت و بی فارم کی اجرائی کئی نشستوں پر اندرونی کشمکش جاری۔ 2026 بلدیہ انتخابات کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے رواں سال 21 ڈویژن سے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا اور گزشتہ شب سے انتخابی سرگرمیوں کا آغاز عمل میں لایا گیا اور مختلف امیدواروں کو بی فارم کی اجرائی عمل میں لائی گئی، جن میں کئی نئے چہرے نظر آئے اور کئی قائدین سیدھا کانگریس اور BRS سے آتے ہوئے بی فارم حاصل کیے اور رواں سال انتخابات میں مجلس کی جانب سے 13 ڈویژن جو کہ ایک ST وارڈ ہے، یہاں سے راج گنیش کو بی فارم دیا گیا، جس کے ساتھ ہی مجلس نے بھی اپنی سیکولرزم کی شناخت کو ظاہر کیا۔ اسی طرح ڈویژن نمبر 29 سے MA قدیر کی اہلیہ، ڈویژن نمبر 53 سے محمد امتیاز، ڈویژن نمبر 46 سے ارشد پاشا، ڈویژن نمبر 30 سے عبدالسلیم، ڈویژن نمبر 6 سے AK حفیظ کی والدہ، ڈویژن نمبر 60 سے MA غفور مقیم کی اہلیہ، ڈویژن نمبر 59 سے محمد رفعت خان کی دختر، ڈویژن نمبر 11 سے سید ذکی الدین کی اہلیہ، ڈویژن نمبر 31 سے ایک نذیر احمد کی والدہ، ڈویژن نمبر 15 سے محمد سراج، ڈویژن نمبر 32 سے محمد ریاض کی اہلیہ،
डिवीज़न नंबर 57 से अमर फारूक की अहलिया डिवीज़न नंबर 14 से मीर मुमताज़ अली को दिया गया, जबकि डिवीज़न नंबर 33 में मोहम्मद मुस्तहसिन को बी फार्म की इजराई अमल में लाने के बाद भी अभी इस नशिस्त को लेकर आला सतह पर बहस जारी होने की इत्तला मौसूल हो रही है और अभी कई नशिस्तों को लेकर अभी कशमकश बाकी है। मस्जिद अजीम की तामीर जदीद की तकमील के मौके पर एक रूह परवर इफ्तिताही नशिस्त का 4 फरवरी को इनकाद। मस्जिद अजीम विकास नगर कॉलोनी कामरडी का 4 फरवरी को इफ्तिताही नशिस्त का होगा एहतमाम। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से हज़रत मौलाना मुफ्ती सबील अहमद साहब कासमी मुज़ाहिर उलूम सारंगपुर सदर जमियतुल उलमा तमिलनाडु तशरीफ़ ला रहे हैं, जबकि सरपरस्ती मिल्लत हज़रत मौलाना मुफ्ती अबू बकर जाबिर कासमी साहब नाजिम कैफुल ईमान ट्रस्ट फरमाएंगे। इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद इरफान जमजम कासमी साहब इमाम व खतीब मस्जिद हाजा मुतज़म्मिन व मुतवलियान मस्जिद NRI नजीबुद्दीन साहब, NRI रज़ीउद्दीन साहब, NRI जनाब अलीमुद्दीन साहब, इस्माइल ज़बी, सैयद POP और नौजवानान महिला विकास नगर साजिद साहब, परवेज साहब, आज़म अली सिद्दीक साहब ने शिरकत व इस्तिफादा की गुजारिश की है। चारशंबे के दिन 4 फरवरी चारशंबे के दिन ज़ोहर की नमाज इंशाअल्लाह आप सबसे गुजारिश है कि मस्जिद अज़ीम में अदा फरमाएँ। और इस मौके पर मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना मुफ्ती सबील अहमद साहब कासमी सदर जमियत उलमा तमिलनाडु व खलीफा हज़रत फ़क़ीहुल उम्मत मुफ्ती महमूदुल हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ये हज़रत तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह और आपका बयान होगा और मस्जिद की इफ्तिताह भी हो जाएगी। लिहाजा सारे अहले महल्ला से गुजारिश की जाती है और महल्ले वाले सारे शहर कामरड्डी से गुजारिश करते हैं कि आप हजरात ज़रूर इस प्रोग्राम में इस जलसे में शरीक हों और हजरत के बयान से इस्तिफादा करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। बांसवाड़ा में म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए 150 दरख्वास्तें मैसूल। बांसवाड़ा में आज म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। इस सिलसिले में सियासी पार्टियों को मुकम्मल तौर पर सरगर्म देखा गया। मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। बांसवाड़ा में बल्दिया की सबसे अहम नशिस्त चेयरमैन की तीनों पार्टियां मजबूत BJP BRS कुर्सी पर देखा जा रहा है। यहां पर कांग्रेस दावेदार है। आज नामजदगी के आखिरी 3 दिनों में तकरीबन 150 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। ये इंतखाबात बांसवाड़ा की सियासी सूरत हाल को मज़ीद दिलचस्प बना देंगे। जीना फातिमा गारी పోటీతో భర్త షేక్ సలీం కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి నాకు ఒక అవకాశం ఇస్తే నేను ప్రజల కోసం పనిచేస్తాను। కావున సార్ నాకు బీఫామ్ ఇస్తే फुल मेजॉरिटी तो गेलुस्तानु मी अंदर सपोर्ट। कामरडी शहर के म्युनिसिपलिटी दफ्तर में म्युनिसिपल वार्डों के इंतखाबात के इनेकाद के लिए कायम किए गए पर्चा नामजदगी मराकिज़ का जिला कलेक्टर इल्ला त्रिपाठी ने किया दौरा। जिला कलेक्टर इल्ला त्रिपाठी ने कामरडी शहर के म्युनिसिपलिटी दफ्तर में म्युनिसिपल वार्डों के इंतखाबात के इनेकाद के लिए कायम किए गए पर्चा नामजदगी मराकिज़ का दौरा किया। वो ज़िला में वाक़े 4 म्युनिसिपलिटी में गुज़िश्ता 3 यौम से पर्चा नामजदगी महसूल की जा रही हैं। वह इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा रहनुमायाना खतूत के मुताबिक इस अमल को खुश असलूबी से अंजाम देने के लिए ओहदेदारों को ताकीद की। कलेक्टर ने कहा कि पर्चा नामजदगी से दस्तबरदारी इख्तियार करने की 31 तारीख है, जबकि 11 फरवरी को मुनक़िद होने वाले पोलिंग के लिए कब्ल अज़ वक्त इंतज़ामात को मुकम्मल करने के लिए इससे मुत्तालिक ओहदेदारों को अहकामात जारी किए। इस मौके पर कलेक्टर ने अब तक महसूल किए गए पर्चा नामजदगी की तादाद और तकर्रुर किए गए ऑपरेटर्स की तफसीलात के अलावा FST SST टीम क़याम व तरबियती क्लासेस का इनेकाद अमल में लाने के अलावा वेब कास्टिंग की
सहूलियात और प्रिंटिंग प्रेस की तफसीलात और बैलेट बॉक्स की फराहमी व दीगर उमूर पर ओहदेदारों से आगाही हासिल की। म्युनिसिपल इंतखाबात को पुरअमन तौर पर इनेकाद अमल में लाने के लिए तमाम तरीन इंतजामात करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जनरल मुबस्सिर प्रशांत कुमार, एडिशनल कलेक्टर विक्टर मदन मोहन, आरडीओ वीना, म्युनिसिपल कमिश्नर राजेंद्र, तहसीलदार जितेंद्र, इंतखाबी अमला व दीगर ने शिरकत की। जकरानपल्ली मंडल के मुकाम पर यौम इंसानी हुकूक के मद्देनज़र ग्राम पंचायत के मीटिंग हॉल में अवाम के लिए बेदारी कॉन्फ्रेंस का किया गया इनेकाद। जकरानपल्ली मंडल के मुकाम पर यौम इंसानी हुकूक के मद्देनज़र ग्राम पंचायत के मीटिंग हॉल में अवाम को बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर त्रिलीकोंडा एससी हॉस्टल वार्डन संतोष ने खिताब के दौरान कहा है कि हुकूमत गरीब तलबा को मेयारी तालीम फराहम करने के मकसद के तहत मंडल में असातिज़ा का तकर्रुर करते हुए तलबा को तालीम के जेवर से आरास्ता किया जा रहा है और स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को बुनियादी सहूलियात की फराहमी अमल में लाने के अलावा तलबा को ग़ज़ाइय से भरपूर खुराकी फराहमी अमल में लाने के साथ साथ तलबा को निसाबी किताबों की तक़सीम अमल में लाने का इजहार किया। प्रोग्राम में मौजू के नौजवानों ख़वातीन के अलावा मौजू के सेक्रेटरी गंगाधर, जीपीओ ममता, महकमे पुलिस का अमले के अलावा दीगर ने शिरकत की। शहर निज़ामाबाद के डिवीज़न नंबर 20 में बीजेपी उम्मीदवार न्यालम राजू, कांग्रेस के उम्मीदवार ललिता ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। शहर निज़ामाबाद के डिवीज़न नंबर 20 में बीजेपी उम्मीदवार न्यालम राजू और कांग्रेस उम्मीदवार वड्डेपू ललिता ने शहर के कंटेशर मीसेवा मराकिज़ में क़ियाम अमल में लाए गए नॉमिनेशन मराकिज़ में अपना नामजदगी दाखिल किया। आने वाले म्युनिसिपल इंतखाबात में मुझे फतेह दिलाने की सूरत में तरक्याती काम अंजाम देते हुए अवाम को हर वक्त दस्तियाब में रहने की ख्वाहिश की और इसके अलावा बीजेपी उम्मीदवार न्यालम राजू भारी रैली के साथ अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर इनके हमरा अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायण गुप्ता मौजूद थे। बोधन म्युनिसिपल इंतखाबात के तहत वार्ड नंबर 26 से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार के तौर पर ए दामोदर रेड्डी ने नॉमिनेशन दाखिल किया। बोधन म्युनिसिपल इंतखाबात के तहत वार्ड नंबर 26 से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार के तौर पर ए दामोदर रेड्डी ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 20 सालों से फतेह हासिल कर रहा हूं, इस बार भी भारी मेजॉरिटी से फतेह हासिल करने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। इन्होंने कहा है कि अवाम को हर वक्त दस्तियाब में रहते हुए इनको दरपेश मसाइल को हल करते हुए हुकूमत की स्कीमात के समराज से हर एक को मुस्तफीद करवाने का इजहार किया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने कहा है कि इस बार हक राय दही का यकीनी तौर पर इस्तकबाल करते हुए अवाम के चहीते कायद को कामयाबी से हमकिनार करने का इजहार किया। वो इनकी जानिब से नामजदगी दाखिल करने के मौके पर कॉलोनी के अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। निज़ामाबाद कॉरपोरेशन के हुदूद में वाक़ डिवीज़न नंबर 6 में बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर श्रावंती रेड्डी ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। निज़ामाबाद कॉरपोरेशन के हुदूद में वाक़ डिवीज़न नंबर 6 में बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर जी श्रावंती रेड्डी ने नॉमिनेशन मराकिज़ पर नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर इनके साथ एमपीडी अरविंद, अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर जी श्रावंती रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की कॉलोनी के अवाम से ख्वाहिश की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि जी श्रावंती रेड्डी गुज़िश्ता बीजेपी म्युनिसिपल फ्लोर लीडर के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुकी है। इस बार मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में फतेह दिलाने की सूरत में डिवीज़न की तरक्की के लिए हर मुमकिन तौर पर कोशिश करने का इजहार किया। నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోని 6వ డివిజన్ బీజేపీ అభ్యర్థిగా గోపిడి శ్రవంతి రెడ్డి నామినేషన్ వేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్, అర్బన్ ఎమ్మెల్యే ధన్పాల్ సూర్యనారాయణ గుప్తా పాల్గొన్నారు. గోపిడి శ్రవంతి రెడ్డిని అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించాలని డివిజన్ ప్రజలను వారు కోరారు. గోపిడి శ్రవంతి రెడ్డి గతంలో బీజేపీ మున్సిపల్ ఫ్లోర్ లీడర్గా పనిచేసిందని, డివిజన్ అభివృద్ధికి పాటుపడిందన్నారు. ఈసారి కూడా గెలిపిస్తే నగర అభివృద్ధికి పాటుపడుతుందన్నారు. శ్రవంతి రెడ్డి గారు
నామినేషన్ దాఖలు చేయడం జరిగింది. నేను డివిజన్ 6 వాస్తవ్యులందరికీ కూడా చేతులు జోడించి రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను, మీరు ఎట్లా బీజేపీకి ఓటేస్తారు, పెద్ద ఎత్తున హయ్యెస్ట్ మెజారిటీ తోటి శ్రవంతి రెడ్డి గారిని గెలిపించాల్సిందిగా ప్రార్థన. ఎమ్మెల్యే గారు, నేను టుడే ఐ మేడ్ ఎ బ్రదర్, ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్. Arjun Reddy, he was a strong aspirant here. He was number 1 in my survey. He has sacrificed for organization, for the party. Shravanti Reddy gar campaign Arjun lead chestadu ikkada. నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది అందరు కాలనీ వాసులకి, దయచేసి బీజేపీని పెద్ద ఎత్తున గెలిపించి ఒక స్వచ్ఛమైన అడ్మినిస్ట్రేషన్ని ఇందూరు మున్సిపాలిటీలో తీసుకొని వస్తాము. స్వచ్ఛమైన అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఇవాళ యూజీడీ పని అయితే లేదంటే, ఇవాళ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ కానీ, రోడ్లు కానీ, క్లీన్లీనెస్ కానీ, హైజీన్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా అధోగతి పాలన అయిందంటే. बीजेपी महात्मा गांधी के नाम की तब्दीली के लिए साजिश करने का डीसीसी सदर नगेश रेड्डी ने किया इजहार। बाबाए कौम महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर जिला कांग्रेस पार्टी दफ्तर में जिला कांग्रेस कमेटी सदर नगेश रेड्डी के ज़ेरे एहतमाम महात्मा गांधी की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए खिराज अकीदत पेश की गई और इसके अलावा शहर निज़ामाबाद के गांधी चौक में वाक़ महात्मा गांधी के मुजस्समे पर ज़िला कांग्रेस सदर नगेश रेड्डी और शहरी कांग्रेस सदर बी रामा कृष्णा ने फूलों का माला पहनाते हुए खिराज अकीदत पेश की। इस मौके पर ज़िला कांग्रेस पार्टी सदर नगेश रेड्डी ने कहा कि मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाले अजीम शख्सियात में गांधी ने कलीदी किरदार अदा किया है। इन्होंने कहा है कि 1948 में कुछ शरपसंद ताकतों ने गांधी का कत्ल किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि बालिहाज मजहब व मिल्लत तमाम तबक़ात के अवाम एहतियात एकजहती के साथ रहने पर ही मुल्क की तरक्की करने पर महात्मा गांधी यकीन रखते थे। इस प्रोग्राम में पीसीसी जनरल सेक्रेटरी राम भोपाल, मार्केट कमेटी चेयरमैन एम गंगा रेड्डी, यूथ कांग्रेस कायद गणराज, माइनॉरिटी सदर एजाज, मार्केट कमेटी मेंबर ईसा, सौपना, बंटू, बलराम, सलीम, नूर, अय्यूब व दीगर मौजूद थे। నమస్కారం జరుపుకుంటూ మరి ఇటువంటి వ్యక్తిని మనం ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోలేము. బాపూజీ గారిని మన దేశం స్వతంత్రం తెచ్చిన వ్యక్తి, మరి అదేవిధంగా అన్ని మతాలు అన్ని కుతాలు ఆదరించిన వ్యక్తులు బాపూజీ గారు. కాబట్టి వారి వర్ధంతులు జరుపుకుంటూ వారి జన్మదిన కార్యక్రమం జరుపుకోవాలని దేశంకు ప్రజలకు కోరుకుంటూ మరి వారి అడుగుజాడలో మనమందరూ శాంతియుతంగా వారి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉందంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఆనాడు స్వతంత్ర పోరాడే వ్యక్తుల్లో మహాత్మా గాంధీ గారు. కాబట్టి వారి అడుగుజాడలో కూడా ఇప్పటి కూడా మనమందరం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ వారసులందరూ కూడా శాంతియుతంగా అన్ని కులాలు అన్ని మతాలను కూడా కలుపుకొని పార్టీ ముందుకెళ్తున్నది। शहर निज़ामाबाद में मुख्तलिफ पर्चा नामजदगी मराकिज़ पर बीजेपी उम्मीदवारों की जानिब से नामजदगी दाखिल करने के प्रोग्राम में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने की शिरकत। निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात से मुतालिक आज पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख होने की वजह से मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवारों ने भारी रैली के जरिए मराकिज़ पर पहुँचते हुए नॉमिनेशन दाखिल किया। इसी से के तहत शहर में वाक़ मुख्तलिफ वार्डों से मुतालिक बीजेपी उम्मीदवार की हिमायत में निज़ामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने नॉमिनेशन मराकिज़ पर पहुँचते हुए ताहम अब तक सरकारी तौर पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना मज़हका ख़ैज़ है। భారతీయ జనతా పార్టీ జెండా ఎగరవేస్తున్నాం. గతంలో 3 డివిజన్లతోటి మనం మిస్ అయినాం. ప్రజలందరూ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ అంటే అభివృద్ధి కావాలంటే భారతీయ జనతా పార్టీని కోరుకుంటాం. ఎక్కడ ఎన్నికలు జరిగినా మొన్నటి మన ఇందూరు ఆనుకొని ఉన్న మహారాష్ట్రలో మనం చూసాం. ఇక్కడ కూడా గత 7 సంవత్సరాల నుండి ఎంపీ గారు మరియు నేను 2 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. ఎక్కడ ఒక రూపాయి అవినీతి లేకుండా. तेलंगाना में इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फार्मेसी कॉलेजों में दाखिलों के लिए इनेकाद अमल में लाए जाने वाले
TGEA PCET 2026 के शेड्यूल को हतमी शक्ल देगी। रियासत में तेलंगाना इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फार्मेसी कॉलेजों में दाखिलों के लिए इनेकाद अमल में लाए जाने वाले TGEA PCET 2026 के शेड्यूल को हुक्काम की जानिब से हतमी शक्ल दे दी गई है। आज JNTUH में मुनाकिदा पहली CET कमेटी इजलास में ये फैसला किया गया है। TGEA PCET सरकारी नोटिफिकेशन 14 फरवरी को जारी होगा और तलबा से ऑनलाइन दरख्वास्तें 19 फरवरी से कबूल की जाएगी और बग़ैर ताख़िर फ़ीस के दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल मुकर्रर है। एग्रीकल्चर फार्मेसी तलबा के इम्तिहानात 4 और 5 मई को और इंजीनियरिंग तलबा के 9 मई से 11 मई तक इम्तिहानात ऑनलाइन मुनाकिद होंगे। रियासत में M.Tech, M फार्मेसी, MR कोर्सेस में दाखिलों के लिए इनेकाद अमल में लाए जाने वाले TGPG-ECET 2026 के शेड्यूल की इजराई अमल में लाई गई है और इम्तिहानात से मुत्तालिक सरकारी नोटिफिकेशन की इजराई 23 फरवरी को होगी और 27 फरवरी से ऑनलाइन दरख्वास्तें कबूल की जाएगी। बग़ैर ताख़िर फ़ीस के दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 6 मई मुकर्रर की गई है। इम्तिहानात 28 मई से 31 मई तक मुनक़िद होंगे। शहर निज़ामाबाद के डिवीज़न नंबर 26 में BRS उम्मीदवार सिरपा राजू ने भारी रैली के जरिए नॉमिनेशन दाखिल किया। शहर निज़ामाबाद में डिवीज़न नंबर 26 कोटा गली से BRS उम्मीदवार सिरपा राजू ने भारी रैली के जरिए पहुंचते हुए फुलांग के पास वाक़े TD कल्याणा मंडपम में क़ियाम अमल में लाए गए नॉमिनेशन मराकिज़ पर पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर सिरपा राजू ने कहा कि शहर निज़ामाबाद में BRS के दौरे इक़्तिदार में कई तरक्याती काम अंजाम देने के बाइस अवाम हुकूमत से मुतमईन थे। आने वाले इंतखाबात में BRS के निशान कार को वोट देकर फतेह दिलाने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि शहर निज़ामाबाद के डिवीज़न नंबर 2026 में तरक्याती काम अंजाम देना है तो BRS से ही मुमकिन होने का इजहार किया। డివిజన్ చేసినాం చాలా సేవలు వాళ్ళందరూ గుర్తించి సంవత్సరం తప్పుకుంటామంటే కూడా వద్దని చెప్పేసి అన్న మీరు నిలబడాలా చాలా పనులు అయితే ఎందుకంటే మీరు ప్రజల్లో ఉంటారు ప్రజల నిస్వార్థంగా సేవ చేస్తారు ఎన్నో పనులు రోడ్లు కానీ డ్రైన్స్ కానీ కరెంట్ అప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్స్ కూడా కరెంట్ తక్కువ వస్తుందంటే 3 ట్రాన్స్ఫర్లు వేయించాము ప్రతి సమస్య నువ్వు సొంత సమస్య భావించి చేస్తావు ఎవరికి ఏ పోలీస్ స్టేషన్లో పని పడ్డా ఆఫీస్లో పని పడ్డా కూడా ఎంబటి ఉండి తిరుగుతావు మాకు కాబట్టి మేము చెయ్యమన్నా కూడా మా ప్రజలందరూ మా ఫ్రెండ్స్ రిలేషన్స్ అందరూ కూడా తప్పకుండా మీరు చేయాలన్నా మీలాంటి వాళ్ళే ఉండాలని చెప్పేసి అని కోరుకోవడం వల్ల నేను మళ్ళీ పోటీలోకి దిగడం జరిగింది సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే BRS పార్టీ నుంచి शहर के असापली में क़ियाम अमल में लाए गए नॉमिनेशन मराकिज़ पर M नवी ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। शहर निज़ामाबाद के अरसापल्ली में वाक़े फिशरीज दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए नॉमिनेशन मराकिज़ पर डिवीज़न नंबर 15 कांग्रेस उम्मीदवार M नवी ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर इन्होंने कॉलोनी के अवाम के जरिए भारी रैली का इनेकाद अमल में लाते हुए नॉमिनेशन दाखिल किया। इस दौरान इन्होंने कहा कि आने वाले म्युनिसिपल इंतखाबात में हाथ के निशान को वोट देकर भारी मेजॉरिटी से फतेह दिलाने की ख्वाहिश की। నిజాం కాలనీ 15th డివిజన్ నుండి మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ నుండి నామినేషన్కి రావడం జరిగింది। ఈరోజు మా జనాలు మేము నామినేషన్కి వస్తుంటే జనాలను చూస్తే సముద్రంలాగా అనిపిస్తున్నారు। మా మీద ఉన్న అభిమానంతో మాకు ఎంత స్వాగతం ఎంత పలికిరంటే ఇది ఎవరు నిజామాబాద్ అర్బన్లో ఎవరు కూడా ఇంత పెద్ద ఎత్తున నామినేషన్కు జనాలు రాలేదని అనుకుంటున్నాను। ఇది చూస్తుంటే నిజామాబాద్ పట్టణంలో कांग्रेस पार्टी अन्य डिवीजनों विजयडंका मोगिस्तुंदी। शहर के अरसापल्ली में कायम किए गए नॉमिनेशन मराकिज़ पर कांग्रेस उम्मीदवार T प्रीतम ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। शहर निज़ामाबाद के अरसापल्ली में वाक़े फिशरीज दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए नॉमिनेशन मराकिज़ पर डिवीज़न नंबर 15 कांग्रेस कॉरपोरेटर उम्मीदवार के तौर पर प्रीतम ने भारी रैली के जरिए पहुंचते हुए पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आने वाले म्युनिसिपल इंतखाबात में हाथ के निशान को वोट देकर फतेह दिलाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में कॉलोनी के अवाम ने शिरकत की। అర్సాపల్లి 15వ నంబర్ నిజాం కాలనీ డివిజన్ నుంచి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నాను।
మా అరసపల్లి నిజాం కాలనీ ప్రజలందరికీ 15 నంబర్ డివిజన్ వాసులందరికీ నేను పేరు పేరున కోరుకుంటూ నన్ను ఈసారి ఖచ్చితంగా గెలిపించాలని, ఒక యువ నాయకుడిని, ఒక శ్రమించి మీకోసం కష్టపడే వ్యక్తిని, మీకు ఎటువంటి పని ఉన్నా మన డివిజన్లో కార్యక్రమాలన్నింటినీ ముందు। शहर निजामाबाद में डिवीजन नंबर 37 में बीजेपी उम्मीदवार अर्चना अनिल यादव ने नॉमिनेशन मराकज में पर्चा नामजदगी दाखिल किया। शहर निजामाबाद में डिवीजन नंबर 37 से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार अर्चना अनिल यादव ने क़याम अमल में लाए गए नॉमिनेशन मराकज पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आने वाले म्युनिसिपल इंतखाबात में बीजेपी को फतेह दिलाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में बीजेपी के सीनियर कायदीन, खवातीन के अलावा डिवीजन नंबर 37 कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుంటామని। మీరు ప్రధానంగా మీ వార్డులో చూసినటువంటి సమస్యలు ఏంటి, మీరు గెలిస్తే రేపటి రోజు వాటిని ఏ విధంగా పరిష్కరించబోతున్నారు? టెంపుల్స్ ఇంకా शहर के डिवीजन नंबर 14 भगत कॉलोनी से पर्चा नामजदगी दाखिल करने का कांग्रेस उम्मीदवार एम.ए. बारी ने किया इजहार। शहर के डिवीजन नंबर 14 असफपल्ली के इलाके में वाक़ भगत कॉलोनी, NRI कॉलोनी के अलावा आटू नगर के हुदूद में कॉरपोरेटर उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। इस मौके पर कॉरपोरेटर उम्मीदवार M.A. बारी ने कहा कि आने वाले म्युनिसिपल इंतखाबात में भारी मेजॉरिटी के साथ फतेह दिलाने की ख्वाहिश की। आज 14 डिवीजन से मैं नॉमिनेशन डाला हूँ कांग्रेस पार्टी से, और मैं एरिया को डेवलप करूँगा। पूरे डिवीजन में हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सबका काम करूँगा मैं पूरा, और पूरे डिवीजन के लिए, तरक्की के लिए पूरा मैं खिदमत के लिए मैं ठहरा हूँ। मुझे खिदमत का मौका दीजिए और भारी एक्सपीरियंस से कामयाब। सालूरा मंडल के ZPHS स्कूल में सकाफती प्रोग्राम का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। सालूरा मंडल के मुकाम पर वाक़ ZPHS हाई स्कूल में सकाफती प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में तुलबा की जानिब से पेश किए गए सकाफती प्रोग्राम काफी मुतासिर कुन रहे। बादशाह तालीम में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तुलबा को प्रतिभा अवार्ड हवाले किए गए। इस मौके पर सदर मुदर्रिस ने तुलबा के नज़्म व ज़ब्त तख्लीकी सलाहियतों की सताइश की। इस प्रोग्राम में MPDO श्रीनिवास, तहसीलदार शशि भूषण, सालूरा सरपंच लावण्या के अलावा दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बी फार्म की इजराई मुख्तलिफ जमातों से कायदीन की अचानक पार्टी में शमूलियत। बी फार्म की इजराई कई नशिस्तों पर अंदरूनी कशमकश जारी। जिला निजामाबाद के मुख्तलिफ बल्दियात में आज आखिरी दिन उम्मीदवारों की कसीर तादाद ने पर्चा नामजदगी की दाखिल। मुख्तलिफ मुकामात पर इंतखाबी सरगर्मियों में नुमायां तेजी देखी गई। तेलंगाना में इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फार्मेसी कॉलेजों में दाखिलों के लिए इनेकाद अमल में लाए जाने वाले TGEA PCET 2026 शेड्यूल को हतमी शक्ल दी गई। 14 फरवरी से ऑनलाइन दरख्वास्तें कबूल की जाएगी। जिला कामरेड्डी के मराकज पर वाक़ म्युनिसिपलिटी दफ्तर में कायम किए गए पर्चा नामजदगी मराकज का कलेक्टर इल्ला त्रिपाठी ने लिया जायजा। में बीजेपी कॉरपोरेटर उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन मराकज पर पर्चा नामजदगी दाखिल किया। मुख्तलिफ मुकामात पर MPD अरविंद, अर्बन MLA धनपाल, सूर्य नारायण गुप्ता के अलावा बीजेपी कायदीन हमरा मौजूद।
के नाम को तब्दील करने के लिए कर रही हैं साजिश। डीसीसी भवन में महात्मा गांधी की तस्वीर पर डीसीसी सदर नगेश रेड्डी ने पेश की गुले अकीदत। आज के लिए इतना ही, दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।